Hello, Sneha. First and foremost, heartiest congratulations to you from the entire MetaGate team. Okay, Thank you for so your much. phenomenal performance in Gate. We are really very, very happy. So, okay, Sneha, first and foremost, tell us about your background, like in which college you are presently, what is the course you are in, like, and just we need to know about it. I was in NIT Bhopal, and NIT in Bhopal, okay, 2024 I completed my BTech in Materials and Metallurgical Engineering, okay, and okay, I was also awarded gold medal in my batch at that great, year. And okay, then I decided to give GATE this time. Uh, right. by a friend of mine, I came to know about Metagate that it will be very good, and then I was completely dependent on On Metagate. Metagate, right? Uh, Okay. So Metagate played a very important role in your Very, entire. very important. Okay. Great. So in 2024 also you sat for the GATE examination? Yes, but I did not study for GATE Okay. at that time. It was like just let's see what happens. Okay. Okay. So this was your serious attempt, I can say, This was my right? first serious attempt. First serious attempt. Uh, Okay. So when did you start preparing for the examination? From which year you actually start into in 2025. Uh, 2025? Okay. huh, in From July, I guess I started. At Okay. that time only I joined Metagate, and So you joined in 2025 itself, right? I joined in Okay. 25. So dedicated 1 year you have given to the examination. Hmm. Right, right. So as you have said that you have been also a topper in your batch. Okay. Yes, sir. So right. So congrats for that as well. So Yes, okay, sir. but there is actually some students feel that GATE examination बहुत बड़ा examination है. So it is only meant for the topper. Since you are the topper, then obviously the myth is not busted here, I should say. But do you feel the same way that GATE is only for the toppers, or anyone can take up this examination, prepare it well, and do good in this examination? What do you feel? I don't think that this exam is only for toppers, because Okay. when I started this prep, कॉलेज में भी ये मैंने पढ़ा था, बट अच्छे हाँ, से प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो मेरे को पता लगा कोचिंग में कैसे क्या होता है, कौन सा right. कॉन्सेप्ट डिसलोकेशन अच्छे से क्या होता है, मतलब कॉलेज में पढ़ना बहुत अलग होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत अलग होता है। तो मुझे लगता है ये कोई भी कर सकता है जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा, टेस्ट दिए होंगे। Mhm. तो So what you are actually saying is, if I'm not wrong, you are saying that classroom में जो प्रिपरेशन होता है, जो सेमिस्टर के लिए जो पढ़ाया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग को सेमिस्टर में मार्क्स मिलता है। बट हाँ, गेट इज नॉट ऑल अबाउट इट। गेट के लिए थोड़ा सा अलग सा गाइडेंस का जरूरत है। हाँ, कैन बहुत आई पुट इट डेप्थ इन? चाहिए। बहुत डेप्थ गेट चाहिए। हाँ, गेट के लिए हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लासेस हम्म, में क्या होता है, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड पढ़ा, हम्म। लिखे, उस और टाइम वहीं से समझ आया। आएगा। राइट, हाँ, वहीं से आएगा क्वेश्चंस हाँ, और मोस्टली। कितनी बार चीजें नहीं समझ आती, तो फिर तो नेक्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ही बदल जाता है। एब्सोल्युटली। बट तो इसमें सब पढ़ना है। and the Metagate, since you have been associated with Metagate for 1 long year, so how will you see this? Like our classes, they are fully according to the gate preparation. How it helped you? Like इट whatever was हेल्प्ड taught अ in the class. लॉट। एक्चुअली मेरे को उतना अच्छे से नहीं आइडिया था कि सिलेबस में कैसे क्या आता है, या फिर पीवाईक्यूज भी मैंने अच्छे से नहीं देखे थे पहले, और कॉन्सेप्ट भी मेरा उतना अच्छा नहीं था जितना मेटागेट में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। तो मेटागेट ने तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग किया मेरे केस में। मतलब मुझे कभी एक्स्ट्रा कोई बुक, मतलब डाइटर वगैरह कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैथ्स में भी मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इतने सारे पीवाईक्यूज क्लास में ही डिस्कस होते थे। Right, फिर right, वो right. ऐप अपने आप में इतना अच्छा है, कॉन्सेप्ट टेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ भी पीवाईक्यू की बुक तक मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। Then concept through questions were also there, CTQs, right? हाँ, सीटीक्यूज वर देयर। हम्म, हम्म। फिर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट थे। और वहां तो CTQ में आपका कवर हो ही जाता है फ्रॉम 1990 टू हाँ, 2025, वो चैप्टर तो वाइज एंड वो टॉपिक तो वाइज। बेस्ट था। मतलब वो जो पीवाईक्यू बैच था प्रॉपर, उसमें तो मुझे लगता है वो रिवीजन के साथ साथ वो जैसे जैसे होता गया, राइट। वो एक पूरा राउंड रिवीजन उसके साथ कंप्लीट हुआ है कि अच्छा ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, फिर से इसको देखना है। अब ओके, उससे बाहर तो कुछ आया भी नहीं पेपर में। great, great. So, acha, how you actually dealt with your weak areas? Like, if I ask you that in metallurgy, in all the sections that are there, so in sections, so obviously you are strong in all the sections. That's why No, you it have, is not so। okay. But still, what are the sections which you felt while you were preparing that these are not actually my strong areas? Okay. And how you dealt with it? Because see, there are many students and aspiring aspirants as well. उनको लगता है कि फॉर गेट यू नो यू हैव टू बी
very strong in all the points, in all the sections. Now, do you feel that really for a top rank, that rank you have actually achieved, for this rank, you have to complete all the sections equally, or weak areas पे अगर आप काम करोगे तो a mediocre student can also improve? If so, हाँ, then how you have actually worked in your weak areas and you have improved it? What was your strategy? जैसे for me weak areas were like in maths some chapters were weak for me. I'm So I'm not engineering, best. engineering Engineering maths, mathematics. Okay. engineering maths, Mhm. and in some of the chapters of physical metallurgy also सब Hmm. में थोड़ा थोड़ा था वीक, बट Okay. वही है कि जो वीक है एक तो उस पे ध्यान देना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो पीवाईक्यूज है Hmm. कि उस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे Okay. इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि Hmm. इस चैप्टर से न्यूटन रैम्सन तो आएगा ही आएगा, Hmm. आर के मेथड से उतना नहीं आता जितना इससे आएगा। तो इसके थ्रू हम डील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वीक पूरा है तो मार्क्स नहीं आएंगे। Sure. जो वीक है उस पे पीवाईक्यूज के थ्रू भी हम रीच कर सकते हैं। So what you are actually saying is कि PYQs का importance अपना weak areas को improve करने के लिए भी है, हाँ equally हाँ, important है. बहुत सारे Okay. क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं कि Hmm. प्रैक्टिस करने को भी Hmm. कि ये आता है। Okay, Sneha, how many hours did you study general? Now, you must be very consistent, obviously, but roughly, can you tell or dedicatedly like in a complete day, how many hours you study? अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं था, बट Mm-hmm. 7.5 ऑन एन एवरेज रहता था, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, Okay. बट ऐसा But फिक्स daily, वो ही रहता था। but daily you used to actually go हाँ through. हाँ So there is a lot of importance of this consistency, हाँ, right? कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासेस फिर उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहना है, सिर्फ रिवाइज ही Right. नहीं करना है, क्वेश्चंस करना है। Right, right, right. So, did you make any short notes like आप क्योंकि you have been our long-term student of MetaGate, so you must be having the notes of the हम्म। classes as well. Okay, so after that, have you made any short notes कि ये क्योंकि पूरा notes पढ़ना तो before the examination it's a bit tedious. So have you did you make any short notes or formula list, अलग से जो एग्जाम के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पढ़ना है, ऐसा कुछ आप किए थे क्या? नहीं, मैं थोड़ी लेजी टाइप हूँ। मैं Okay. उसमें स्टार मार्क करते जाती थी कि अच्छा ये Okay. क्वेश्चन मेरे को देखना है एक बार पेपर से पहले, या फिर ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो इसको तो करना है, या मॉक टेस्ट में मेरे से बार बार एक ही गलती हो रही है Hmm. तो वो मैं सेम नोट्स में ही स्टार मार्क करते जाती थी, और रिवाइज करते टाइम तो वो सेम रिकॉलिंग टाइप है कि ये आता है तो इसको Hmm. आगे बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक करना है। तो Hmm. ऐसे अलग से मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। Okay. And gate का जो like कुछ the last minute of the preparation, like I not say last minute, say for example 1 month before the examination, did you change your strategy or the strategy was the same throughout, or did you change it before the examination that अभी थोड़ा सा pace up करना है, अभी थोड़ा सा जो है like accelerate करना है, ऐसा कुछ था या फिर it was consistent throughout? इट वॉज कंसिस्टेंट, देयर वॉज नो चेंज, लाइक सेम रिविजन। मॉक टेस्ट बस थोड़े बढ़ गए थे कि लास्ट टाइम में जैसे रोज देना है लास्ट के 15-20 डेज में मॉक टेस्ट एनालिसिस, और ट्राई करना है कि रिवाइज करते जाना है। ऐसा कुछ अलग से नहीं था, सेम था, रिवाइज टेस्ट एनालिसिस रिपीट So ऐसा। up 20 days before the examination you started the mock test roughly हाँ, 20 डेज नहीं, 1 मंथ one में month. ही। Okay. हाँ, Okay. वैसा था। Hmm. Very, very similar, sir. Even for revision also that mock tests were very helpful. That एक क्वेश्चन था वो लैपलास वाला जो यूजुअली नहीं आता पेपर में, बट वो सबसे लास्ट वाले मॉक टेस्ट में था, और मैंने तो वो चैप्टर रिवाइज भी नहीं किया था कि ये शायद ही आएगा, बट क्योंकि वो मॉक में आ गया था तो फिर मैंने वापस से उसको रिवाइज किया, और फिर वो फाइनल पेपर में भी आ गया। तो वो ऐसा लग रहा था कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ गेट का पेपर। So it was just like a repeat, whatever you have हाँ, actually. So all the questions were not new to you actually. नो, इट वाज लाइक आई एम गिविंग अ मॉक जो सेम घर बैठ के देते हैं। So आप बहुत relaxed थे examination हाँ, time पे, हाँ? That बहुत is the ज्यादा, वो best thing. तो That is the best प्रॉपर thing. मॉक ही था, मॉक टेस्ट नंबर 16। ऐसा था। Great, great, great. बहुत अच्छा. So okay, now after writing the mock test, when you used to write MetaGate's mock test, after writing the mock test, did you used to analyze the paper? हाँ, यस, Mock test. मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें Hmm. मैं लिखती थी कि कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, कौन से Okay. क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, कौन से मैं कर सकती थी, या फिर कौन सा Hmm. मेरा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा गड़बड़ है, या मेरे को और Hmm. रिवीजन की जरूरत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को मैं फिर से रिवाइज करती थी।
Okay. तो So वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ देना मतलब हो गया कि कोई फिर वो हेल्प नहीं करेगा, विदाउट एनालिसिस इट इज ऑफ नो absolutely. यूज. Absolutely. So in analysis, on an average, like if the paper mock paper is of 3 hours, on analysis, how much time you used to devote after the test? 2 hours. So that is equally important. It is हाँ, that is equal, very important. very important, right? So the student should not skip that, right? No, without that it is like you have not given that test. Hmm. Because फिर improve क्या होगा अगर टेस्ट देके एनालिसिस नहीं किया तो. Absolutely. Okay. And Sneha, in mock tests, Metagate का mock test पे आपका average में मतलब on an average if I ask, what was the marks that you were actually getting in the test? वो कंसिस्टेंट मार्क्स तो नहीं थे स्टार्टिंग में, तो मेरे 45 49 ऐसे भी आया है. फिर वो Okay. धीरे धीरे बढ़े, Improve हुआ. 55 हुए, फिर 60 हुए, फिर 65 हुए, फिर 70 हुए, फिर एंड में 75 प्लस थोड़े बहुत आने लगे थे लास्ट Great. में. Great. Actually, why I asked you this question is many students at first when they start preparation na and उतना marks नहीं आता है, like you said you started with something like 40 and around, right? So उनको अगर कम marks आ रहा है तो 2-3 mock test देने के बाद they drop it. They हाँ think that GATE is not for me क्योंकि हाँ marks नहीं आ रहा है, ऐसे करके सोचते हैं. That is why I asked you this question. So you consistently you worked hard and from you improved your marks in the mock tests as well, right? हाँ. बिकॉज And सिर्फ रिविजन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक्स भी है, क्योंकि मॉक्स अपने आप है कि अलग अलग चैप्टर से एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है अपने को, बस ये उस वक्त सोच नहीं पाए, तो वो जितना ज्यादा मॉक्स देंगे right, उतना इम्प्रूव होता जाता है. right. I was like from start to end it was in this way only. बस ऐसा था कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं दे देना, अगर नहीं बन रहा है तो फिर नेक्स्ट, और जिसमें थोड़ा डाउट है उसको मार्क फॉर रिव्यू किया, फिर लास्ट में जब थोड़ा टाइम बच जाता था 15-20 मिनट, तो जितने भी मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं उसको फिर से एक बार देख के मैं करती थी. Okay. The basically the resources. Can you actually tell our audiences like कौन सा book आप follow किए हो apart from the class notes if you have followed any book? Right. ऑनेस्टली इट वाज ओनली क्लास नोट्स. मैं जब Great. कॉलेज में थी तब बुक पढ़ती थी, Okay. बट फिर डाइटर वगैरह भी थोड़ा बहुत Hmm. पढ़ा था उस वक्त, बट जब अभी स्टार्ट किया तो इट वाज ओनली क्लास नोट्स. Very good. इट वाज Ac- नथिंग एल्स देन क्लास नोट्स. So that is why I think you scored so well in GATE as well because most of the things this is a very common doubt that the students have actually which books we should follow. But all those books that you were saying, Dieter is a very good book. But again, that book is not written from the GATE perspective, I think, right? So in class notes, you have exactly what is the requirement of the GATE examination. Dieter भी कोई पढ़ सकता है लेकिन उसको थोड़ा सा समझना है क्या पढ़े क्या हाँ नहीं पढ़े, राइट? हाँ, और तो you have बहुत to टाइम भी understand. लगेगा. और बहुत understand. क्लासेस मतलब इतने अच्छे से क्लासेस होते थे कि मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक कर पाती थी, फिजिकल मेटलर्जी को मैकेनिकल से, फिर एक्सट्रैक्टिव से. और मैथ्स का भी इतना अच्छा था कि सर ने तो दूसरे ब्रांचेस के भी क्वेश्चन करा दिए थे अपने क्लास में, तो उसमें तो Right. कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि ठीक है सब हो जाएगा, वैसा था. Okay, fine, very good. Now I'm going to ask you one thing. If you are stuck in a topic, tough topic, ऐसे तो आपका जर्नी में हुआ होगा, so some of the topics you're stuck in. So what did you do when you're stuck? Like you used to ask sir directly, or you used to like कहीं से कुछ मिल जाए in the PYQs, whether it's important from the GATE's perspective, you used to see like that. So what was your strategy when you find the topic actually difficult? I used to directly message sir Okay, with okay. the screenshot and photo and whatever I find on internet जो मेरे को नहीं समझ आ रहा, and he is very helpful कि मतलब उसी टाइम वो सॉल्व हो जाता था. Okay. ओके ओके. सो अच्छा, और एक चीज है कि आप थ्योरी पे इन द टॉपिक्स डिड यू फोकस मोर ऑन थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और बैलेंस्ड इट वाज एक्चुअली? इट वाज एक्चुअली मोर ऑफ द सेंस दैट इससे आ क्या रहा है पेपर में. जैसे ओके. क्लासेस में पीवाईक्यूज भी कराते थे, तो वो जब वो पढ़ा लिए फिर जब वो क्वेश्चंस कराते थे तो उससे समझ आता था कि अच्छा ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आता है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो मेन अगर पेपर में उस टॉपिक से थ्योरी आ रहा है तो उसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है. अगर जैसे मैकेनिकल मेटलर्जी में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से मेन था कि पीवाईक्यू के थ्रू कि अच्छा इससे क्या आ रहा है. क्या? ओके. सो आपका आप कितना लाइक हाउ मेनी रिविजन्स यू हैव डन? ऐसा फिक्स नहीं था, बट 3-4 मिनिमम 4 ऐसा था जो वीक कंप्लीट टॉपिक. सिलेबस यू हैव रिवाइज्ड हाँ ना? कंप्लीट, और वो उसी में रहता था. क्लासेस हो गए, फिर क्लास नोट्स के रिवीजन, कॉन्सेप्ट टेस्ट जस्ट उसके बाद, ताकि वो मेरे को आया है कि नहीं एक बार समझ आ जाए. फिर उसके बाद वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, फिर रिवीजन जितना बार हो पाए उतना बेटर.
वैसा है। हमारे सीटीक्यू बैच में हमने एक बार फुल रिवीजन हम भी करवाए थे। हाँ यस सर। या, यस सर, वो सब्जेक्ट्स के भी थे। मैंने और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पीवाईक्यूज के इतने अच्छे थे कि वो बहुत पहले के 90 के भी किसी किसी सब्जेक्ट्स में थे पीवाईक्यू, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर कॉन्सेप्ट्स, इट वाज वेरी हेल्पफुल। ग्रेट ग्रेट। ओके स्नेहा, नाउ जस्ट अगर आपको कुछ बोलना है लाइक टू द एस्पिरेंट्स ऑफ गेट मेटलर्जी, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू आस्क देम टू अवॉइड एक्चुअली, to not do that? What are the mistakes that generally people do in this preparation and they should avoid it? Okay, so what are your suggestions? जो चीज अवॉइड करनी है वो ये है कि पीवाईक्यू से भटकना नहीं है ज्यादा। जैसे कि वो पीवाईक्यू वाला बैच है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो एक डायरेक्शन देता है कि ठीक है, मेरे को इस टॉपिक से ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेरे को इससे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि सेम चीज, इतनी सारी चीजें, डाइटर की बुक कितनी बड़ी है, उसी को अगर पूरे टाइम पढ़ते रह जाएंगे तो वो कुछ भी रिवाइज भी नहीं हो पाएगा, सही से क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस ही कर रहे हैं, क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर कई लोग मॉक्स नहीं देते हैं, आपको आता है फिर भी आप पहले मॉक में तो फंबल करते ही है ना। तो Absolutely. वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक सारे अच्छे से देना है, इवन पेपर से एक दो दिन पहले भी, कि उस मोड में रहे कि मेरे को ठीक है टेस्ट देने जाना है। To activate your mind actually. हाँ, और Right, right. सेम टाइम में अगर 2:30 पेपर है तो सारे मॉक्स उसी टाइम पे देना है। सर मेरे पास नोटपैड तो नहीं था, मैं कॉपी में वो हाफ हाफ करके, एक पेज का हाफ करके उसमें करती थी। और वैसे ही मेन एग्जाम में भी वैसे ही हुआ, वो नोटपैड था और मैंने उसमें भी पेज का हाफ किया, और मैं तो वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था नोटपैड, और मेरा पूरा पेपर अच्छे से हो गया था। See, actually, you implemented everything that was told to you. That's why हाँ your rank is so good. That's great. Okay, so uh, gate calculator. Now I'm going to talk about that. So how important is the gate calculator? To practice in gate calculator, because बहुत सारा time क्या होता है, we focus on studying and mock tests and things like that, but students ignore this, gate calculator, and then they struggle during the examination. So how important is it and how you practiced? No. सेम वही कि जितने बार भी क्वेश्चन, अगर रूम में बैठ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंप्यूटर में खोल के रखे कि जो भी कैलकुलेट करना है इसी पे करना है, या जो भी टेस्ट दिए कॉन्सेप्ट टेस्ट उन सब में भी इसी कैलकुलेटर से करना है। अगर टेस्ट देते टाइम मतलब नहीं है कैलकुलेटर, तो वो वेबसाइट खोल लिया जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो उससे हैबिट हो जाती है। क्योंकि ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए ना कि आता है पर वो कैलकुलेट सही से नहीं कर पाए। Absolutely. और ये होती है गलती, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट होता है जो हम लोग कॉलेज में यूज करते हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट होता है। Different of that. Absolutely. So that is practice before the examination is very important in the GATE calculator, right? हाँ Okay. So what is your future endeavors, Sneha? What you are going to do, like get admission in MTech, or you are for the PSUs, or what is your future goal actually? I am trying for PSUs, but I'll be Okay. very happy also if I get into MTech. You will I, be definitely. so, Okay. so I am trying if I get in IC Bangalore, then I'll be on seventh heaven. You are on that then. You have already got it, huh? AIR 8, that means no. So MTech is your first priority, I should say, right? I am trying for PSUs, Okay. but I will go to MTech, I think, for now. Okay. 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 Thank you, Sneha. All the best for your future endeavor from the entire MetaGate team, and we'll be connected with you always. It's not that the gate exam is over and you are also a part of the team itself. We consider students Yes, as a sir. part of our team, so we'll be connected always, all through. यस एंड Thank you थैंक यू so. सो मच, आप लोग बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा हेल्प किया है मुझे। मुझे तो कुछ भी आइडिया ही नहीं था कॉलेज के बाद से कि कैसे क्या क्या करना है, पर सारे फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं Our सच में। pleasure. और जो Thank you. मेरे और मार्क्स आ जाते सच बताऊं तो, पर वो मेरी ही गलती से नहीं आए, वो नोट से ही थे मैक्सिमम क्वेश्चंस। Okay. दे वर ऑल्सो गुड, इवन किसी किसी सब्जेक्ट के पिछले साल के पीवाईक्यूज भी थे यूट्यूब पे, तो मैंने वो भी पूरे देखे थे, शायद फिजिकल मेटलर्जी के भी थे और भी किसी किसी के थे, तो मैंने वो भी पूरे देखे थे। और ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्लास में जैसे आप बताते हैं वहां पे भी उतने ही अच्छे बताते हैं। सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच सर। जस्ट